365 ডিজিটেল অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এতিয়া আমি বিশেষ ঘোষণা লাভ কৰিছো। অসমত সত্যসতে নহয় এছআইআৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিস্তৃত সংশোধনী এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো সবিশেষ। অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ ঘোষণা। অসমত সত্যসতে নহয় এছআইআৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিস্তৃত সংশোধনী। বিহাৰৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছআইআৰ ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ তালিকাত নাম নাই অসমৰ। এছআইআৰক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক আলোচনাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আমি এই ঘোষণা এতিয়া লাভ কৰিছো। অসমত এনআৰচিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সত্যসতে এছআইআৰ নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত। আৰু নাগৰিকত্ব আইনৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা আছে অসমত। জ্ঞানেশ কুমাৰৰ এই মন্তব্য। অসমৰ বাবে পৃথক হ'ব ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমক লৈ ল'ব অন্য সিদ্ধান্ত। আৰু আনহাতে আজিৰে পৰা 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰ। নিশাৰ পৰা সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যকেইখনত স্থবিৰ হ'ল ভোটাৰ তালিকা। অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ ঘোষণা আমি লাভ কৰিছো। অসমত সত্যসতে নহয় এছআইআৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিস্তৃত সংশোধনী। বিহাৰৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছআইআৰ ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ তালিকাত নাম নাই অসমৰ। এছআইআৰক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক আলোচনা আৰু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। অসমত এনআৰচিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সত্যসতে এছআইআৰ নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। নাগৰিকত্ব আইনৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা আছে অসমত। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে জ্ঞানেশ কুমাৰে। অসমৰ বাবে পৃথক হ'ব ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমক লৈ ল'ব অন্য সিদ্ধান্ত। আনহাতে আজিৰে পৰা 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰ। নিশাৰ পৰা সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যকেইখনত স্থবিৰ হ'ব ভোটাৰ তালিকা। অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ ঘোষণা কৰিছে। অসমত সত্যসতে এছআইআৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিস্তৃত সংশোধনী নহয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। বিহাৰৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছআইআৰ ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ তালিকাত অসমৰ কিন্তু নাম নাই। এছআইআৰক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক আলোচনা চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। অসমত এনআৰচিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সত্যসতে এছআইআৰ নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিব পৰা যায়। এই মুহূৰ্তত আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে। এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে মন্তব্যত শুনাব বিচাৰিছো। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता
और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।